We have learned the details of acceleration in our previous class. We have learned the details of acceleration in our previous class, and I had asked everyone to please see the previous video to get ready for today's class to understand more things about acceleration. Okay, to understand more things about acceleration. Now, if I little bit just revise the definition, is that suppose acceleration occurs only when there is non-uniform velocity, means the velocity must change. Okay, if there is uniform velocity, the acceleration will be equals to 0, or acceleration will not be there. Because what is acceleration is, suppose a vehicle is moving at a, or an object is moving at a speed of 5 meter per second, which is called its initial velocity, or velocity of 5 meter per second in this direction, and then it has come up to this much. Here also it has not stopped moving, but its velocity has increased to 10 meter per second. It happens when you go through the road, we increase our velocity, right? But to increase the velocity, the time required was 2 seconds. So the final velocity minus the initial velocity is the change in the velocity, but divided by time when you do, it is how fast velocity is changing, or rate of change of velocity, which is equals to acceleration, which is equals to 10 minus 5 by 2. So that is 5 by 2 meter per second square. These things were explained last day, 2.5 meter per second square. So this is the rate of increase of velocity. The rate of increase of velocity. This is the rate of increase of velocity, as we know. Okay, in this way velocity increases, or in this particular journey, this is the rate of increase of velocity. If anyone says that acceleration was found to be 10 meter per second square, then you should understand that from 20 meter per second up to 30 meter per second if you go, then in 1 second if they change the velocity, in 1 second 20 meter per second से direct 30 meter per second में चला गया. So in that case what happens is, in that case 30 minus 20 by 1, which is 10 meter per second square. Or it could be like this, 20 meter per second to 40 meter per second, okay, in 2 seconds. So 40 minus 20 by 2 will give you 20 by 2, which is 10 meter per second square. So that is what is the mathematical concept of acceleration. It is a very commonplace observation that whenever we go somewhere, or whenever we travel with a vehicle, the acceleration is there. The body doesn't move in uniform velocity. If it would be moving in uniform velocity, suppose here also it is 5 meter per second, here also it is 5 meter per second, here also it is 5 meter per second, here also it is 5 meter per second. If it would be moving in uniform velocity, then what would have happened? Then the initial velocity u also will be 5 meter per second. The final velocity v will also be 5 meter per second. So you will get v minus u by t. So let the time in between be 10 second, 30 second, doesn't matter. But v minus u will give you 0. So 0 by something is 0. So acceleration is 0. So whenever there is uniform velocity, there is no increase in velocity. And when there is no increase or change in velocity, when there is no change in velocity, I should say, not only increase, when there is no change in velocity, acceleration is 0. Okay. For example, here you can see the v is 5 meter per second, the u is also 5 meter per second. So v minus u is equals to, you get 5 minus 5 is equals to 0. So doesn't depend how much the time was spent in between. So whatever it is, 0 by t will give you 0. So I hope that you have understood. लेकिन क्या acceleration का मतलब? Is acceleration always means increase in velocity? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि गाड़ी आप फास्ट जैसे कर सकते हो. आप एक गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड में था, अब थोड़ी देर बाद गाड़ी का स्पीड बढ़ गया है और गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड में है, और ये स्पीड बढ़ाने में या वेलोसिटी बढ़ाने में जो टाइम लगा है वो है 6 सेकेंड्स.
तो 5 माइनस 3 फाइनल v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू 6। सो कितना मिला 2/6 यानी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि गाड़ी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में और थोड़ी देर बाद गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो गया है। ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है? ऑब्जेक्ट के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो जब गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो गया तब सोचो इसका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब स्लो होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो यही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी तो यही रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम जब करोगे तो आपको 2 माइनस 5 बाई, सोचो इसको करने में 3 सेकेंड लगा होगा, तो 3। सो यू विल गेट माइनस 3 बाई माइनस इजिकल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सीलरेशन आया है वो नेगेटिव में आया है। तो एक्सीलरेशन जब नेगेटिव में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, देखो रेट ऑफ इंक्रीज मतलब कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। ठीक है, उसका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है, जब वेलोसिटी घटेगा तब नेगेटिव में आएगा। जैसे कि सोचो एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, मूव कर रहा था, वो 6 मीटर पर सेकेंड की गति से या वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो जब यहाँ तक आया तब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोकने का कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाए, लेकिन इसके वजह से ये स्लो हो गया है। तो स्लो होके ये बन गया 2 मीटर पर सेकेंड। और इतना इसके बीच में जो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ उसके बीच में समय का अंतर था, सोचो 2 सेकेंड्स। तो क्या होगा, 2 फाइनल वेलोसिटी इज़ 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 बाई टाइम इज़ 2। तो -4/2 इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन इज़ नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी घट रहा है और कितना जल्दी वेलोसिटी घट रहा है वो हमें पता चल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 तरीके का हो सकता है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना हो तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी जब चेंज होता है तो उसमें रिटार्डेशन हो सकता है जब वेलोसिटी घटता है, या फिर एक्सीलरेशन हो सकता है जब वेलोसिटी बढ़ता है। राइट, एक्सीलरेशन में क्या होता है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, द वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। रिटार्डेशन का यही फॉर्मूला है। इट्स जस्ट दैट रिटार्डेशन में क्या होता है कि रिटार्डेशन में द v इज स्मॉलर देन u, क्योंकि आप जब शुरू करते हो आपका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होता है, आप जब ख़त्म करते हो आपका फाइनल वेलोसिटी कम होता है। तो इसीलिए u इज़ ग्रेटर देन v। और एक्सेलरेशन में क्या होता है कि v इज़ ग्रेटर देन u, क्योंकि आप जब शुरू करते हो तब आपका वेलोसिटी कम होता है, जब आप ख़त्म करते हो तब आपका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। तो उसका एक्चुअली ये तो वेलोसिटी ज़्यादा कम से इंक्रीज डिक्रीज हम लोग को पता चल रहा है, वो दूसरा बात है। लेकिन याद रखना एक्सीलरेशन एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइम में इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, ये टाइम गैप कितना लगा इंक्रीज होने में या टाइम गैप कितना लगा डिक्रीज होने में, ठीक है, तो वो टाइम से डिवाइड करके हम लोग रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज जानते हैं, जिसको एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि सोचो अगर आप एक गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी आप स्टार्ट किए हो, गाड़ी जब स्टार्ट किए हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जब स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक चले गए
तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये करने में आपको टाइम लगा होगा 2 सेकेंड। तो आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, तो v माइनस यू बाई टी आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। v हो गया आपका 5 माइनस 0/2, सो दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है वो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अब दूसरी चीज़ ये है कि और एक एग्जांपल सोचो, एक गाड़ी चल रही है सॉरी, एक गाड़ी चल रही है। जब ये गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी सोचो 5 मीटर पर सेकेंड सोचो, ठीक है। जब ये गाड़ी चल रही है और जब ये गाड़ी आके रुक जाएगी, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी आके रुक गई, ठीक है, तो उसका रुक जाने से उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया v माइनस यू बाई टी, मतलब क्या हो रहा है 0 माइनस 5 बाई टाइम, जितना कितना लगा है सोचो 5 सेकेंड टाइम लगा है बाई 5, तो क्या होगा -5 बाई, या फिर सोचो टाइम्स 2 सेकेंड लगा है तो अच्छे से होगा, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन क्योंकि क्या हुआ है, वेलोसिटी घटा है, राइट। एक चीज़ बता रहा हूँ, और एक चीज़ याद रखो कि किसी भी चीज़ में अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके, हाँ, तो किसी भी चीज़ में वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, v इज़ इक्वल्स टू यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब ये है उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, ये तो मैथमेटिकली भी मैंने बताया है। लेकिन इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप नॉन यूनिफॉर्म में बदल सकते हो। कैसे पता है? एक ही रास्ता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म में बदलने का, वो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दो। कोई भी चीज़ जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया। सोचो एक बॉल धीरे 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 यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा था, आपने आके बॉल को किक कर दिया तो उसका वेलोसिटी तुरंत बढ़ जाता है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म बन गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया। तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने से यूनिफॉर्म वेलोसिटी बदल के नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी बदल के जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गया तो इसका मतलब फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर कम्स एक्सीलरेशन, उसमें एक्सीलरेशन के पैदाइश हुई या उस मोशन में एक्सीलरेशन आया। क्यों? क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता हुआ चीज़ उसका वेलोसिटी पटक से बढ़ गया। तो वेलोसिटी सोचो वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था और आपने आके किक कर दिया तो वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बन गया वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जब बढ़ गया, जब 50 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका वेलोसिटी, तब एक्चुअली क्या हुआ, तब हमारा एक्सीलरेशन होगा, है कि नहीं? क्योंकि तब आपको एक कितना टाइम में आपने चेंज किया होगा वेलोसिटी, उस टाइम से डिवाइड करके 50 - 5 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर से। इसका मतलब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन पैदा होता है, एक्सीलरेशन पैदा होता है फोर्स की वजह से। हालांकि फोर्स की वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में बदलता है और उसके वजह से एक्सीलरेशन पैदा होता है। जैसे कि एक बॉडी अगर रेस्ट में भी है तब भी अगर उसको आप मारो तो जब वो जाएगा तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि रेस्ट में जब है उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और जब आपने किक मारा है या फोर्स अप्लाई किया है तब उसका वेलोसिटी सोचो कुछ एक है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज़ हुआ तो बस टाइम निकाल के कितना टाइम में हुआ होगा तो उसका बस फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम कर देने से रेट ऑफ एक्सीलरेशन रेट ऑफ इंक्रीज़ मिल जाता है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन मिल जाता है। तो रेस्ट का बना हुआ चीज़ को भी अगर फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी में मूव करने लगता है, तो वहाँ पे भी एक्सीलरेशन ही हुआ। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन मिलता है, ठीक है। सो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, we actually understand that application of force increases the velocity,
the velocity, but application of force can also decrease the velocity. That also you remember. Suppose the ball is moving in this direction and the force is applied in this direction, same direction, then the velocity will increase and positive acceleration will occur. But if the ball is moving in this direction and you try to stop the ball from this direction, then either it will stop or move little bit slowly. So that's why here also acceleration, but negative acceleration, that is known as retardation. So both is caused by force. That is what I wanted to mean, whether it is stopping the body or whatever. Okay. So there can be lot of situations. At first let us understand, if anyone say me that acceleration is 5 meter per second square, and if anyone say me that acceleration or retardation is minus 2 meter per second square, what is the meaning of this? First, when they say acceleration is 5 meter per second, so that means v minus u by t is 5 meter per second square. So it is actually 5 meter per second by second. That's why the unit become 5 meter per second square. You have learnt in previous class. So that means in 1 second, 5 meter per second of velocity is increasing. A velocity is 5 meter per second of velocity is 5 meter per second of velocity is increasing. Okay, 5 meter per second of velocity is increasing. In 1 second, 5 meter per second velocity is increasing. Suppose for example, a car is moving at 25 meter per second square, and in 6 seconds it went to 55 meter per second square. So that 25 meter per second velocity. So initial velocity is 25, final velocity is 55. So you get v minus u by t, which is 55 minus 25 by 6. So 30 by 6, you will get how much? 5 meter per second square. So that is 5 meter per second square, means that in 6 seconds your velocity jumped from 25 meter per second to 55 meter per second. So 30 meter per second velocity jump. The change in velocity is 30 meter per second. So 30 meter per second is the velocity jump in how much? In 6 seconds. So in 1 second, 5 meter per second jump is there. Means per second 5 meter per second velocity increase होते होते आगे बढ़ रहा है. Per second 5 meter per second velocity increase होते होते आगे बढ़ रहा है. Per second 5 meter per second velocity increase होते होते वो आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो यही चीज़ मतलब है. तो इसका मतलब उल्टा होगा, इसका जस्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा होगा. ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा होगा इन 1 सेकेंड. इन द सेम वे. सो तो एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था और वो डिक्रीज़ होके स्टॉप हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया. तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया और इतना वो हुआ 5 सेकेंड्स में. तो 0 फाइनल माइनस 10 बाई 5, तो क्या आएगा? माइनस 10 बाई 5, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 2 मीटर पर सेकेंड करके वेलोसिटी उसका घट रहा था. ठीक है, ये सवाल बहुत होता है कि एक्चुअली स्क्वायर ये यूनिट जो है एक्सीलरेशन का, जो भी है एक्सीलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है, एम पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों इसका यूनिट है. तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पे और एक बच्चे ने पूछा है तो फिर से मैं बता देता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इसका फॉर्मूला है. तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो, सोचो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो भी हो, सोचो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम का ये, तो 10 माइनस 2 आपको 8 मिलेगा, 8 बाई 5. अब ऊपर क्या मिला? मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, और टाइम का सेकंड. तो यूनिट में क्या हुआ? मीटर बाई सेकंड बाई सेकंड. तो इसको मीटर बाई सेकंड बाई 1, तो ये सेकंड बाई 1 पकड़ के ऐसे, मीटर बाई सेकंड ऐसे, ये बाई साइन है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका मतलब मीटर बाई सेकंड इंटू 1 बाई सेकंड. ठीक है, डिवाइड साइन को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आया? मीटर बाई सेकंड स्क्वायर. इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा जाता है. कोई कोई इसको ऐसे भी लिखता है, मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2. कोई कोई वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड है उसको ऐसा लिखता है, मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 1. ओके, वंस यू हैव डन विद द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द वीडियो,
Let us do some questions now. What do you mean by initial and final velocity? Initial velocity is the velocity of the object when it starts its motion. Final velocity is the velocity of the object when it stops its motion. What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. What is its unit? Its unit is meter per second square. What is retardation? Retardation is rate of decrease of velocity. How is it different from acceleration? Because acceleration is rate of increase of velocity. Retardation is rate of decrease of velocity. Retardation happens when a body decreases its velocity. Acceleration happens when a body increases its velocity. From your mind, imagine and write two situations where acceleration is happening and two situations where retardation is happening. Here I can give you two situations, but you think your situations, okay? Suppose the car started moving. When it started, its initial velocity was 0, and when it is moving, it has some final velocity. So at that time, final minus initial, suppose the final is 5 meter per second, for 5 minus 0, by the time if you do, you will get acceleration. Retardation, when a car comes and stops. Okay, because when a car comes and stops, it was at a particular velocity, the final velocity becomes 0, suppose the initial was 5. So it is 0 minus 5 by the time, maybe 2 seconds. So a negative acceleration or retardation will come. It is obvious, no, that whenever an object is moving and stops, its velocity becomes 0, so velocity decreases, that means retardation occurs. And whenever a body starts and moves, its velocity increases from 0, so there is acceleration occurring. Okay, one more situation you can think from yourself. How is force responsible for producing acceleration? Force is the agent, or force is the physical quantity which application of which a body at uniform velocity goes into non-uniform velocity, and a body at rest also goes into velocity. So that means acceleration is produced by force because there is increase in velocity in both the cases. And whenever there is increase in velocity, there will be acceleration. How will you apply force to do acceleration and retardation? In whichever direction the body is moving, if I apply force in that direction only, then acceleration will happen. If a body is moving at a particular direction, if I apply force on the body from the opposite direction, the velocity will decrease, and in that case it will happen to have retardation.